प्यारे बच्चों, जब कभी भी इस तरह का इन्फिनिट सीरीज पूछा, इसको सॉल्व करना कितना दर्दनाक है मुझे मालूम है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा, मगर मैं आपके लिए एक चीट कोड बताता हूँ। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेसिस्टर का डबल है ना वर्टिकल रेसिस्टर। आसान आंसर क्या है मालूम? रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज 2 ohms। वैसे अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल वाला डबल हो गया ना, तो वर्टिकल वाला ही आंसर है। बस इतना सा कर लो। प्यारे बच्चों, ये एंटी विट्सोन ब्रिज है। एंटी विट्सोन ब्रिज का मतलब क्या है? यहाँ पर 3 1 है तो फिर उसका उल्टा है, यहाँ पर 1 3 है। इट इज नॉट ए विट्सोन ब्रिज, ये विट्सोन ब्रिज के खिलाफ है। इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप लोगों को मालूम भी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, लास्ट ईयर इन नीट ऑल्सो। तो इसको यहाँ पर एक चीट कोड है, आपको इसको सॉल्व करना कैसा है मालूम आप लोग? फॉर एग्जाम्पल आपको सी ए बी मालूम करना है, तो फिर आसान तरीका क्या है? सी ए बी जस्ट ये जो है ना 3 + 1/2 कीजिए आप लोग, तो आपको आएगा 2 माइक्रोफैराड्स। अब यहां पर 4 ऑप्शंस है, 2 भी है 1.8 भी है। यू हैव टू सेलेक्ट, वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जो 2 के करीब है और 2 से कम है। 2 के करीब और 2 से कम, मतलब ये ऑप्शन इसका आंसर है। ये हो गया इसका चीट कोड। थैंक यू। Dear students, I will tell you a wonderful strategic method to solve these type of problems where students will leave these type of questions. Just like he is asking us to find out the ammeter reading. Very simple it is. Wherever ammeter is connected in the upper part, to resemble, to substitute, bypass this larger circuit, I have drawn a simple circuit below that. So this part of the circuit I am taking separately downwards. So 3 ohms, this is 12 volts. And ammeter reading is asking. So this part I am drawing here. Remaining 3 ohms and 3 ohms. These are connected in parallel. So 3 are connected in parallel means the resultant is going to be 1 ohm. So this is 1 ohm. This is 3 ohms which is here, and this is 12 volts. Ammeter reading is very easy now. So here this 3 and 1 are in series. Therefore the net resistance is going to be 4 ohms and net voltage is going to be 12 volts. And you have to find out the current, which is nothing but V net by R net, which is 12 divided by 4. 3 amperes is the reading of this ammeter. That is. Dear students, this is a wonderful problem. I'll give you a simple logic to solve this type of problems where students will feel a lot of confusion. So here, he's asking us to find out the ammeter reading. First thing is, as the battery is connected parallel to all the resistors, therefore each and every resistors is having a current I is equal to V by R, that is which is equal to 2 amperes. Okay, so this is equal to how much? 2 amperes. Here also 2 amperes. Here also 2 amperes. Here also 2 amperes. But you know that the current through these wires will come here and they will bypass towards, they will move towards the battery, but the remaining 2 amperes they have to pass through the ammeter. Totally ammeter reading is 6 amperes. That's it, so simple. प्यारे बच्चों, ये जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन आप जहां पर भी देख लो, बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया। मैं आपको इतना आसान शॉर्टकट बताता हूं कि आपका दिल खुश हो जाए। यहां पर जो है ना टोटल रेसिस्टेंस 4000 दिया और टोटल पोटेंशियल आके 4 वोल्ट्स, और यहां पर जो करंट पास हो रहा, सेम करंट पास हो रहा। इसका मतलब I is equal to V by R, which is going to be constant, which is going to be constant. करंट कांस्टेंट है यहाँ पर। जब 4 वोल्ट इतने सारे रेसिस्टेंस को कनेक्टेड है, तो फिर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 5 रेसिस्टेंसेस? ये पांचों रेसिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल पूछ रहा। इसके लिए मेरे पास आसान ट्रिक ये है कि यू हैव टू कंसीडर V by R. That's it. V by R is equal to constant. मतलब ये 4 वोल्ट्स टोटली V by R यानी कि 4000. ओके, तो ये जो पोटेंशियल है V नॉट, इट इज सेलेक्टेड अराउंड 500. सो इसके लिए 500 बस. सो 4 ones 4000s. ओके, सो दिस 2 zeros cancel. So V naught is equal to, this 5 goes to the side, V naught is nothing but 5/10, which is 0.5 volts. 0.5 volts. V naught हो गया 0.5 volts. Dear students, whenever this type of infinite series comes where R horizontal is R and R vertical is double to that of the R horizontal, that means
if R vertical is 2 times of R horizontal, then R net, that means resultant resistance, is going to be R vertical. Direct answer this one. This is a cheat code. Otherwise, if you don't follow my method, then the good news is that you have to follow all these quadratic equation, and at last you will get the answer as 2R. Okay, that's it. Thank you very much. जब भी आपको इस तरह का इन्फिनिट सीरीज दिख जाए जहां पर 2 ओम्स का इन्फिनिट सीरीज है, जहां पर अगर टाइम कम है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मुसीबत झेलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक छोटा सा चीट कोड है, इसको इस्तेमाल कर लीजिए, आप आसान चुटकियों में आ जाएगा। तो यहां पर चीट कोड क्या है? रेसिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज आर इंटू 1 प्लस रूट 5/2। बस आर के प्लेस में 2 डाल दीजिए और आंसर इज रेडी। तो क्या करना है, यहां पर आर के प्लेस में 2 डाल देना है बस। सो 2 इंटू 1 प्लस रूट 5/2, दैट्स इट। तो आ गया आंसर 1 प्लस रूट 5, बस इतना सा। प्यारे बच्चों, नीट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सबसे मुश्किल क्वेश्चन माने जाने वाला क्वेश्चन ही है, जिसके अंदर 95% बच्चे इसको टच नहीं करे होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है, और इसका सॉल्यूशन बुक्स के अंदर इतना मुश्किल दिया कि बच्चों को समझने के लिए 10 मिनट लगते, मगर मैं आपको इसको आसान तरीके से समझा रहा हूं। अब पहले एक कॉन्सेप्ट तो समझ लो, यहां पर 2 आइडेंटिकल चार्जेस है, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, तो दोनों चार्जेस जो है रोप से हैंग हो रहे, इट इज हैंग्ड फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ L, ओके। तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन देयर इज वन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्जेस इन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑफ repulsion because of electrostatic force, and नीचे की तरफ जो है ना mg, weight of the charge is acting downwards। इसका मतलब ये भी फोर्स downwards mg, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, both the angles are called as corresponding angles बोलते हैं इसको। अब देखो मैं क्या करूं, यहां पर क्या कर रहा हूं, tan थीटा ले रहा हूं। tan थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड, फोर्स बाई mg, ओके। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई mg, इसका मतलब tan थीटा क्या हो गया, F का मतलब kq² बाई mg इंटू x²। ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इट इज टेकन एज x², ओके। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या करूं मैं, यहां पर जो एंगल है इसको ले रहा हूं sin थीटा। sin थीटा का मतलब क्या है, ये x मतलब उसका आधा क्या हो गया, x/2, अपोजिट साइड क्या हो गया, x/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का मतलब 2l, ठीक है। सो sin थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया, दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 2। अगर एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, छोटे छोटे एंगल्स अगर ले लिए तो हम क्या कर सकते हैं, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा बोल के ले सकते हैं। मतलब इक्वेशन नंबर विल बी, इक्वेशन 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे, kq² बाई mg इंटू x² इज इक्वल टू x/2l, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, q² यहां पर ले लो, ये x² ऊपर ले लिए, अगर ये x² को यहां पर भेज दिए तो q² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x3, ठीक है। दैट मींस ये सारा कचरे को मैं हटा देना यहीं, तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻3/2। बस इतना आसान मेथड है, बुक्स में भी नहीं मिलता, कुछ चाहे तो आप देख लो, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूं, q इज इक्वल टू k x⁻3/2। अब मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट करूं, आसान करके डिफरेंशिएट कर देना। यहां पर x⁻3/2 का मतलब क्या है, 3/2 इंटू x⁻3/2 - 1, बिकॉज d बाई dx ऑफ x⁻n क्या है जी, nx⁻n - 1, यहां पर n 3/2 है, सो 3/2 इंटू x⁻3/2 - 1 इंटू फिर और एक बार x को अलग से डिफरेंशिएट करो, dx/dt हो गया, ठीक है, dx/dt हो गया, ये रफ वर्क है। तो ये x⁻3/2 - 1 dx/dt। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा हम इसको यहां पर हटा देंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे, फिर हमको करना क्या है देखो, ओके। तो dq/dt वैसी कर दो, और यहां पर क्या है, k 3/2, x⁻3/2 - 1 मतलब x⁻1/2, dx/dt को v ले सकते। अब यहां पर कांस्टेंट्स क्या क्या चीजें हैं जिनको हटा सकते हैं हम लोग, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बचा क्या आप, x⁻1/2 इंटू v, मतलब v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x⁻1/2, दैट मींस v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻−1/2। आ गया आंसर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x⁻−1/2, इसका आंसर है। इतना आसान और सिंपल वे में दिमाग को डुबा के एक्सप्लेन कराना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर समझो, ये जो बैटरी है ना, इसके पास कितनी एनर्जी है, इस बैटरी के अंदर 100% एनर्जी है। जब
2 माइक्रोफैराड्स का कैपेसिटर इस बैटरी को ज्वाइन कर दिए तो ये पूरी 100% एनर्जी ये कैपेसिटर अब्सॉर्ब कर लेगा। मगर जब ये कनेक्शन जो बैटरी का है इसको यहां से निकालकर अगर यहां कनेक्ट कर दिए देन क्या होता है, ये 100 जो परसेंट है ना इसमें से ये दोनों शेयर करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक शेयर करेंगे। इसके अंदर 2 माइक्रोफैराड है तो 20% शेयर करेगा, इसके अंदर 8 माइक्रोफैराड्स है तो ये 80% शेयर करेगा। तो फिर क्यों करना है ये सब करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, मगर क्यों अपने को टाइम वेस्ट करना है, समझे आप। शॉर्टकट मेथड बोलूंगा मैं आपको, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। एक वायर है जो कि सेमी सर्कल में बेंट है। A wire is bent in the form of a semicircle. What is an electric field intensity at the center? यहां पर मिडिल में इस पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? Because of a wire, thin wire having a semicircular shape. तो यहां पर जस्ट सिंपल क्या करना है, लैम्बडा साइन फाई बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मालूम है बिकॉज ऑफ ए वायर, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, बस ये तो मालूम है, हमको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं। जस्ट ये साइन फाई बाई 2 ऐड करना है, बस आ गया आंसर। E इज इक्वल टू लैम्बडा, फाई क्या है, सेमी सर्कल मतलब 180 डिग्रीज, सो 180 मतलब क्या, साइन फाई बाई 2 मतलब कितना, साइन 90। साइन 90 तो 1 है, डालो या ना डालो मत, कुछ भी नहीं, सेम। सो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, दैट्स इट। ये स्मॉल ए दिया ना, आ गया आंसर। ये नीट का 2019 का क्वेश्चन है। ये इतना टफ क्वेश्चन है कि बच्चे मुझे बार बार जो है व्हाट्सएप के अंदर इसका फोटो भेज रहे, सर इसका कोई शॉर्टकट है तो बता दीजिए। इसका तो शॉर्टकट है, इतना आसान तरीका मैं समझाऊंगा कि आप लोगों को हमेशा के लिए इसका कोई डाउट नहीं रहेगा। सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट मेथड में बताऊंगा, इतना ट्रांसपेरेंट कि आपको मजा आ जाएगा। यहां पर देख लो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले 2 मेटालिक स्फीयर्स है। ये मेटालिक स्फीयर्स इस तरह है कि यहाँ इसका जो रेडियस था 2r था और इसका रेडियस था r, ओके, दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसका। देन दे हैव सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों का चार्ज डेंसिटी क्या था, सेम था, सिग्मा और सिग्मा। दे हैव बीन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, ओके, एंड देन सेपरेटेड। दोनों को कॉन्टैक्ट में ले लेके आए, इधर इसका रेडियस 2r था, इसका रेडियस r है, दोनों के बीच में वायर ज्वाइन करे, ठीक है। वायर ज्वाइन कर देने के बाद फिर कनेक्शन निकाल दिए, फिर जुदा कर दिए। देन नया चार्ज डेंसिटी क्या है इसके अंदर बच्चे पूछा। क्वेश्चन को समझना थोड़ा मुश्किल है मगर मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया यहां पर। सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज नथिंग बट चार्ज बाय एरिया। यहां पर स्फेरिकल बॉडी है ना, तो चार्ज बाय सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। यहां पर इसका सिग्मा क्या हो रहा मालूम आप लोगों को, इसका सिग्मा हो रहा Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज Q1 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसका चार्ज आ गया पहले वाले का। नेक्स्ट दूसरे वाले का चार्ज है, इसका चार्ज Q2 समझो, इसका चार्ज Q1 है समझिए। तो सिग्मा इज गोइंग टू बी Q2 बाई 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब यहां पर रेडियस डबल कर दिया ना, रेडियस डबल कर दिया तो करो कि 4 आर स्क्वायर हो गया, तो इट्स गोइंग टू बी हाउ मच, तो दिस इंप्लाइज दैट Q2 इज इक्वल टू 4 4 16, तो ये हो गया 16 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा का वैल्यू दोनों का, और ये हो गया चार्जेस का वैल्यू, ठीक है। हमको इसका भी चार्ज आ गया और हमको सेकंड बॉडी का भी चार्ज आ गया 16 पाई आर स्क्वायर। अभी हम करेंगे नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब क्या हो गया, वी नीड टू ऐड द 2 चार्जेस हियर, ठीक है। We have to add the 2 charges. Then what is going to be happen now? 4 plus 60 is going to be 20 pi r square into sigma. तो टोटल चार्ज हमारे पास है। अब दोनों को ज्वाइन कर दिए तो पहले इन दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था, इसका पोटेंशियल V1 था, इसका पोटेंशियल V2 था। जब ज्वाइन कर दिए तो पोटेंशियल सेम हो जाता, जैसे कि एक टैंक था और एक टैंक था, इसमें पानी कम था, इसमें पानी ज्यादा था। जब हम दोनों के टैंक के बीच में अगर से पाइप ज्वाइन कर दिए, पाइप लगा दिए, तो ये इसमें से पानी इसमें आकर गिरेगा। कब तक गिरेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता, यानी कि हायर टैंक में से लोअर टैंक को आ जाएगा, जिसका लेवल ज्यादा था उसमें से लोअर, जब तक कि पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पोटेंशियल इज नथिंग बट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। जब पोटेंशियल सेम हो गया और ये सारी चीजें सेम है तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर चार्ज Q1 बाई Q2, इसका चार्ज Q1 और इसका चार्ज Q2 इज गोइंग टू बिकम हाउ मच, R1 बाई R2, डायरेक्ट रिलेशन। तो यहां पर क्या करेंगे, R बाई 2R, यानी कि RR कैंसिल।
सो Q1 by Q2 इज नथिंग बट 1/2 हो गया इसका रेशियो, ठीक है। देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये 1/2 हो गया, देन वी आर गोइंग टू सेपरेट देम, दोनों को अलग अलग कर दिए, जुदा कर दिए। तो नया चार्ज क्या हो रहा है, इसका नया चार्ज Q1 डैश समझो और इसका नया चार्ज Q2 डैश समझो। अभी Q1 डैश क्या हो रहा है मालूम, ये दोनों का 1:2 रेशियो है, जब जुदा हो जाएगा तो फिर इसका क्या होता है अलग से, Q1 डैश इज गोइंग टू बिकम 1/3, ये 1:2 है, मतलब ज्वाइन करे तो 3 होता ना, तो इसके अंदर 1/3 चार्ज रहता है, इसके अंदर क्या रहता है 2/3 चार्ज रहता है। ओके, सो Q1 डैश इज नथिंग बट टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है Q नेट, सो इट इज गोइंग टू बिकम Q नेट बाई 3। ओके, Q नेट बाई 3, इसका मतलब पहले वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज नथिंग बट क्या हो रहा Q1 डैश बाई एरिया 4 pi r स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया r है ना, तो फिर Q1 डैश क्या हो रहा Q नेट बाई 3, Q नेट बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 pi r स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा 1 इज गोइंग टू बी Q नेट क्या हो रहा 20 pi r स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 pi r स्क्वायर, सो pi r स्क्वायर उड़ गया, तो 4 1s 4 5 20, तो कितना बचा यहाँ पर 5/3 सिग्मा। ओके, 5/3 सिग्मा, तो पहला वाला आंसर आ गया। अभी दूसरे वाले आंसर का कोशिश करेंगे हम लोग, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सॉल्व फॉर द सेकंड केस हियर। तो अभी क्या करेंगे, सिग्मा 2 मालूम करेंगे। सिग्मा 2 इज नथिंग बट Q2 डैश डिवाइडेड बाय 4 pi r स्क्वायर, इसका रेडियस डबल था तो 4 pi r स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट सिग्मा 2 इज नथिंग बट Q2 डैश। ओके, यहां पर Q2 डैश का मतलब क्या है मालूम, Q2 डैश इज नथिंग बट Q नेट, Q2 डैश इज नथिंग बट 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज, ठीक है। Q2 डैश इज नथिंग बट 2/3 ऑफ द टोटल चार्ज, इसका मतलब यहां पर क्या डालेंगे 2/3 Q नेट डालो डिवाइडेड बाई 4 4 16 pi r स्क्वायर, ठीक है। अब Q नेट के प्लेस में क्या डालेंगे, Q नेट इज नथिंग बट 20 ना, तो यहां पर डाल दो 20 pi r स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाई ये सारी चीजें 2/3 इंटू 16 pi r स्क्वायर, सो pi r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या है यहां पर 4 4 16 4 5 20, ठीक है, और यहां पर 2 1 2 2 4, तो कितना बच रहा 5 इंटू यहां पर 2 है ना, 3 2 6, यानी कि 5/6 टाइम्स ऑफ सिग्मा, तो 5/6 टाइम्स ऑफ सिग्मा इसका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। प्यारे बच्चों, कैपेसिटर वर्सेस रेसिस्टर, इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को जस्ट तूफानी स्पीड में किस तरह सॉल्व करेंगे हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। बहुत कम वक्त में मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। लेट मी डिस्कस हियर नाउ। देखो ये सब व्हीटस्टोन ब्रिजेस है, कितने तरह के व्हीटस्टोन ब्रिजेस होते हैं। लेट मी डिस्कस इन वेरी फास्ट एंड स्मूथ एंड पॉसिबल फास्टेस्ट वे। लेट अस सी हियर नाउ, व्हेन ऑल द रेसिस्टर्स आर सेम इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज, any one of the resistance is going to be the answer। तो इसका आंसर क्या है, resistance across AB is going to be just R। Similarly in the capacitors also, capacitors across AB, when all the capacitors are same, पूरे कैपेसिटर सेम है तो कोई एक कैपेसिटर उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो रेसिस्टेंस अक्रॉस द व्हीटस्टोन ब्रिज AB is going to be any one of the resistor, सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। So here also capacitance across AB is going to be any one of the resistor and all the capacitors are same in a Wheatstone bridge। ये भी Wheatstone bridge है। नेक्स्ट अब देख लो, ये भी Wheatstone bridge है, इसका मतलब रेसिस्टेंस अक्रॉस AB क्या हो रहा है, एनी वन ऑफ द रेसिस्टेंस इसका आंसर है। और कैपेसिटेंस अक्रॉस AB क्या है, कोई भी एक कैपेसिटर उसका आंसर हो जाएगा when it is a balanced Wheatstone bridge and all the capacitors and resistors are going to be same। नेक्स्ट ये भी Wheatstone bridge है, तो यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर क्या हो रहा है, रेसिस्टेंस अक्रॉस ये भी और ये और दोनों के टर्मिनल्स, इसको ओपन करो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, द आंसर इज गोइंग टू बी आर, एनी वन ऑफ द रेसिस्टेंस इज गोइंग टू बी द आंसर। और कैपेसिटर्स अक्रॉस ये भी क्या है, व्हेन ऑल द कैपेसिटर्स आर सेम, कोई एक कैपेसिटर आंसर हो जाएगा इसका। So this is one more. So this is also a Wheatstone bridge in which upper part is going to be a Wheatstone bridge। तो यहाँ पर C दो सारे रेसिस्टर्स एंड सारे कैपेसिटर्स सेम है। सो ऊपर वाले पार्ट का कैपेसिटेंस क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, तो ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज का कैपेसिटर रिजल्टेंट क्या है, C है, और नीचे वाले का C, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो C अक्रॉस ये भी दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी 2C। तो यहाँ पर ऊपर वाले रेसिस्टेंसेस हो गया R, क्योंकि कोई एक रेसिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा,
और नीचे वाला रेसिस्टर R, ये दोनों क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है, दे आर कनेक्टेड पैरेलली। सो रेसिस्टेंस अक्रॉस AB इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ एनी वन, इसका आधा, यानी कि R/2 इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, तो यहां पर और एक, तो ये क्या है, डबल व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऊपर वाला एक व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका रेसिस्टेंस R हो गया, नीचे वाला रेसिस्टेंस है, नीचे वाला व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका रेसिस्टेंस R, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, both are going to be parallelly connected, so it's going to be R/2. Here also ऊपर वाला कैपेसिटेंस C है, नीचे वाला कैपेसिटेंस C है, and both are going to be parallelly connected, C and C. So C across AB is going to be, दोनों को ऐड करना पड़ेगा 2C, ठीक है, this is going to be your answer. प्यारे बच्चों, जब कभी भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिजेस आते हैं तो मैं इसको एक ही सेकंड में सॉल्व करके बता दूं। इसमें जो है ना, सिर्फ इतना पार्ट का अगर हम पहचान लिए ना रिजल्टेंट, तो वही उसका आंसर हो जाता। अब कैसा करेंगे देख लो आप लोग, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। इतना सा कैसा मालूम करेंगे, C सीरीज में है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया C/2। ओके, अब इन दोनों को ऐड करना है बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, C/2 प्लस C, इसका मतलब कितना, इट इज गोइंग टू बी 3C/2। इसका आंसर है C अक्रॉस AB। ये दोनों पॉइंट्स के बीच का कैपेसिटेंस कितना है, 3C/2। उसी तरह यहां पर भी सिर्फ इतने कोने का अगर रिजल्टेंट मालूम करेंगे ना तो वही आंसर होगा। तो ये दोनों का क्या है, 2R। ओके, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2R और ये 2R इसको पैरेलल है, इसका मतलब कितना, 2R/3 हो गया इसका आंसर, रेसिस्टेंस अक्रॉस AB। ये दोनों पॉइंट्स का रेसिस्टेंस 2R/3 है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है ना, तो क्या करेंगे, 2R into R/2R plus R, इसका मतलब 2R²/3R, 2R/3 इसका आंसर है। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर फिजिक्स के अंदर खेलना चाहेंगे? चलो खेलते हैं खेल। अब ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, कैपिलर, इसको बेंड कर दिए इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, डायग्रामेटिकली रेसिस्टेंस पूछा, जब हम इसको बेंड कर दिए तो रेसिस्टेंस डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे, आधा आधा, और जब ऊपर वाला और आधा नीचे वाला दोनों अगर पैरेलली कनेक्टेड है, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलली है और सेम है तो किसी एक रेसिस्टेंस का आधा रेसिस्टेंस आंसर होगा। इसका मतलब R/2 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर हो गया R/4, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ। तो यहां पर देख लो, दोनों रेसिस्टर्स सीरीज है, 6 + 6 क्या हुआ, 12, और इसको पैरेलल है 3, 12 into 3/12 + 3, R1 R2 by R1 + R2, 12 into 3/12 + 3 हो गया 2.4, मतलब नेट रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2.4। I is equal to V/R हो गया, V उन्हें दे दिया 4.8 डिवाइडेड बाय 2.4 हो गया 2 एम्पियर्स। और थोड़ी देर खेलेंगे हमारे साथ। तो R/10 दोनों सेम है और पैरेलल है, इसका मतलब किसी एक रेसिस्टेंस का आधा हो गया आंसर, मतलब R/10/2 विच इज नथिंग बट R/20। ऐसे R/20 कितने हैं, 5 है, इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5 4 जा, R/4 इसका आंसर हो गया। और थोड़ी देर खेलेंगे हमारे साथ। ये दोनों ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, जब कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया और पूरे रेसिस्टर सेम है, कोई एक रेसिस्टर इसका आंसर हो जाएगा। 3 3 3, ये तीनों सीरीज में है और 9 है, और ये दोनों सीरीज में है और 6 है। 9 into 6/9 + 6 अगर कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3.6 आंसर। ये हो गया आपका आंसर। और थोड़ी देर मेरे साथ खेलो, खेलने में मजा आ रहा है तो खेलो, वरना छोड़ दो। ये हो गया 3 वोल्ट्स, 4 वोल्ट्स, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। सबसे पहले करंट मालूम करो, कितना करंट पास हो रहा है यहाँ पर, हाउ मच करंट इज पासिंग। 6 into 3/6 + 3 हो गया 2 ohms, ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2 ohms, ये 2 + 4 6 ohms। I is equal to V/R, 3/6 हो गया 0.5 एम्पियर्स इसका करंट। और पूछ रहा क्या, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इसका मतलब ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना, ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा बिकॉज दे आर पैरेलली कनेक्टेड। अगर इसका पोटेंशियल मालूम करें और इसमें से निकाल दिए तो बाकी का पोटेंशियल तो आ ही जाएगा। सबसे पहले हम करंट मालूम करें, कितना हो गया करंट, 0.5 एम्पियर्स फ्लो होगा यहाँ पर। टोटल करंट मालूम करें ना, तो 0.5 into 4 4 20, इसका मतलब 2 वोल्ट्स है। इस रेसिस्टेंस के अंदर 2 वोल्ट्स है, टोटल 3 वोल्ट्स है, तो बचा कितना, 1 वोल्ट इसका आंसर है। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ। अगर इस तरह का पैरेलल कनेक्शन है, इस तरह का इनफिनिट सीरीज है जिसके अंदर एक रेसिस्टर दूसरा रेसिस्टर एक का डबल हो गया, तो डबल वाला ही आंसर है, डबल वाला ही आंसर है। और थोड़ी देर खेलो हमारे साथ। और खेलना चाहेंगे तो खेलो। देखो 2 और 6 into 2/6 + 2, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया 1.5 एम्प 1.5 ohms, 1.5 सीरीज में हो गया 3, ये पूरा का मतलब 3 ohms, और 3 ohms पैरेलली कनेक्टेड है। जब दो रेसिस्टर सेम है और पैरेलली कनेक्टेड है, किसी एक रेसिस्टर का आधा आंसर हो गया, मतलब 1.5 ohms टोटल रेसिस्टेंस है। और क्या पूछ रहा, हमको पूछ रहा करंट, टोटल पोटेंशियल हमारे पास है, टोटल करंट हमारे पास है
टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट हो गया 6 बाय 1.5, इसका मतलब 4 एम्पियर इसका आंसर हो गया। और थोड़ी देर हमारे साथ खेलो, खेलने में मजा आ रहा। तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्यों है, क्योंकि इसको अगर ओपन कर दिया तो बीच का रेसिस्टर है और पूरे रेसिस्टर सेम है। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पर जब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर पूरे रेसिस्टर सेम है तो आंसर हो जाएगा कोई एक रेसिस्टेंस का, मतलब पूरे 2 ओम्स अगर है तो आंसर 2 ओम्स, पूरे 4 ओम्स है तो आंसर 4 ओम्स हो गया। और यहां पर देख लो, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन पूछ रहा, और क्या पूछ रहा है यहां पर, रेसिस्टेंस कितना है बोल के पूछ रहा। सबसे पहले देखो ये क्या है, इट इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोला। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस बोल के पूछा। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब यहां पर 2 ओम्स, यहां पर 2 ओम्स, यहां पर 2 ओम्स, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 2 ओम्स होना चाहिए और ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। 6 into RES by 6 plus RES is equal to 2 ohms। 6 into RES, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 to 12 plus 2 RES। ओके, सो यहां पर 6 RES minus 2 RES कितना हो रहा, it is going to be 4 RES is equal to 12। इसका मतलब RES क्या हो रहा, 12 by 4, 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ भी नहीं है बाबा, ये तो कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर मिडिल से करंट पास नहीं होता, याद रखो, मिडिल से करंट पास नहीं होता, मतलब ये रेसिस्टेंस है तो भी नहीं है के बराबर, ये भी नहीं के बराबर है। अब देखो यहाँ पर, अब ये अगर नहीं है तो फिर मिडिल वाला देखो, ये मिडिल वाला क्या हो रहा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर अगर पूरे रेसिस्टर सेम है तो एक रेसिस्टर उसका आंसर हो जाएगा, मतलब आर आर आर, ये तीनों सीरीज रख लो, 3R, ऊपर सिर्फ 2R, नीचे भी सिर्फ 2R हो गया, बस ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्क्यूट। 2R पैरेलल है, दोनों सेम है और पैरेलल है, तो फिर किसी एक का आधा हो गया आंसर, मतलब पूरा बच गया कितना, 3R बच गया था बीच में, ये दोनों का क्या बच गया, सिर्फ R बच गया, मतलब 3R into R by 3R plus R, which is nothing but 3R by 4 इसका आंसर है। थैंक यू। This type of complex circuits will come. I say complex circuits को generally we apply Kirchhoff's law and waste your valuable time. Just we can work with Ohm's law. Kirchhoff's law को bypass सर्जरी कर दो, Ohm's law डायरेक्ट यूज करो। Ohm's law which is nothing but V by R, which is also taken as E net by R net. E मतलब EMF, EMF का रिजल्टेंट ले लो। यहाँ पर 10 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है, मगर देखो यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस मतलब 10 minus 5 होगा, और नेट रेजिस्टेंस मतलब ऐड ऑल द 3 रेजिस्टेंस, 2 plus 2 plus 1 that is 5। योर आंसर इज नथिंग बट 5 by 5 which is 1 ampere, that's it। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, इफ दिस वाज पॉजिटिव एंड दिस वाज नेगेटिव, देन जस्ट यू हैव टू ऐड देम, बस इन दोनों को ऐड करना होता था। यहाँ पर 10 plus 5 is nothing but 15 by R net is 5, so 3 amperes होता अगर डायरेक्शन सेम होता, मगर डायरेक्शन क्या है यहाँ पर अपोजिट है, इसलिए डिफरेंस लेना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। थैंक यू। इस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों को थोड़ा चैलेंजिंग दिखते हैं, जैसे कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। इस चैलेंजिंग को हम चैलेंजिंग से लेंगे तो फिर चैलेंजेस खत्म हो जाता। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पर नेट करंट क्या चीज है मालूम करना है। नेट करंट कैसा मालूम करेंगे, नेट करंट इज नथिंग बट नेट पोटेंशियल बाय नेट रेसिस्टेंस। नेट पोटेंशियल हमको मालूम है 10 वोल्ट, अभी नेट रेसिस्टेंस मालूम करना है। इतना आसान है, देखो ये 4 plus 2 6 है, मतलब ये 6 ohms, नीचे वाला भी 6 ohms, दोनों सेम है और पैरेलल है, मतलब किसी एक का आधा, किसी एक रेसिस्टेंस का आधा रेसिस्टेंस होगा आंसर। इसका मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस कंबाइन टुगेदर, ये सबका मिलाकर कितना है रेसिस्टेंस, जस्ट 3 ohms। अब देखो यहां पर ये 3 ohms, ये 1 4, और यहां पर जो है ना इस बैटरी के अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है, मतलब 3 plus 1 plus 1, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, टोटल रेजिस्टेंस 5 हो गया। टोटल ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ईएमएफ कुछ भी बोलो, इट इज गोइंग टू बी 10 हियर। इसका मतलब टोटल करंट कितना हो गया, 2 एम्पियर्स, सॉरी ओके, तो 2 एम्पियर्स करंट होगा यहाँ पर, 2 एम्पियर्स, मतलब यहाँ पर 2 एम्पियर्स करंट फ्लो होगा। तो यहां पर करंट डिवाइड हो रहा, बिकॉज रेसिस्टेंस जब सेम होते तो करंट आधा आधा कर लेते, यहां पर 1 एम्पियर और यहां पर 1 एम्पियर। इसका मतलब अच्छी तरह से देख लो, ये I into R, मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या आ रहा है हमको, 4 into 1 कितना हो गया, इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 4 वोल्ट्स। यहां पर 2 into 1 2 एम्पियर, यानी कि V इज इक्वल टू IR है ना, so 2 into 1 is going to be 2 volts, okay? तो यहाँ पर 4 volts और यहाँ पर 2 volts, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B का मालूम करना है। इस पॉइंट को हम समझेंगे
इस पॉइंट को हम समझेंगे P, ओके। तो अभी क्या करेंगे, VP माइनस VA, ओके। VP माइनस VA इज नथिंग बट 4 into 1 विच इज 4 वोल्ट, ठीक है। अभी यहां पर VP माइनस VB, VP माइनस VB क्या हो रहा है यहां पर 2 वोल्ट, ओके, 2 वोल्ट हो रहा। अभी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। हमको पूछ रहा क्या, VA माइनस VB, VA माइनस VB मतलब VA पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस 1 अगर हम कर दिया, 2 माइनस 1 करें तो फिर ये पॉजिटिव होता। किस तरह पॉजिटिव होता देख लो, VP माइनस VB माइनस ऑफ VP माइनस ऑफ माइनस VA विल बिकम प्लस VA, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस VA, ओके। और दोनों का डिफरेंस कितना बता रहा है यहां पर, इसमें से इसको निकाल देंगे तो हो गया 2, आई मीन कितना, नीचे वाले में से 2 माइनस 4, बिकॉज 2 माइनस 1 मतलब है दोनों का, 2 माइनस 4 हो गया माइनस 2 वोल्ट, ओके। तो यहां पर क्या कैंसिल होने वाला है देख लो, VP माइनस VB, VP कैंसिल हो जाएगा, VA माइनस VB बच गया, ठीक है। तो VA माइनस VB इज नथिंग बट कितना, माइनस 2 वोल्ट हो गया आपका आंसर, माइनस 2 वोल्ट। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम है देखो, डरना नहीं, बहुत आसान प्रॉब्लम है, ये बच्चे भी कर सकते हैं। इसको देख के टेंशन ना देख के, ये जितने भी वायर्स हैं ना, इसको देख के टेंशन में आए थे बच्चे, क्या भी टेंशन की जरूरत नहीं, टेंशन फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा, इसका मतलब क्या होता, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, ये दोनों का रिलेशन पूछा। क्या करेंगे अभी, देखो यहाँ पर एक मास है, एक बड़ा वाला मास, एक छोटा वाला मास, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, ये कॉमन सेंस, फिजिक्स 80% कॉमन सेंस, 20% नॉलेज, बस कुछ भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हेवी है ना, नीचे की तरफ आता, ये लाइटर बॉडी ऊपर की तरफ जाता। उसके बाद एक चीज ध्यान में रखो, हमेशा टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आदमी की जिंदगी में टेंशन बहुत हो गई, एक्सेलरेशन कम हो जाता, आगे नहीं बढ़ सकता। टेंशन कम है, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता, सुकून है, बहुत आगे बढ़ सकता। सो टेंशन ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन मतलब मूवमेंट कम हो जाता उसका, समझ में आ रही बात। तो यहां पर क्या हो रहा, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, मतलब क्या करते, T2 by T1 इज इक्वल टू A1 by A2, ठीक है। अभी देखो यहां पर एक ही वायर है, इधर क्या करते, टेंशन T, और यहां पर क्या है, यहां पर भी सेम वायर, टेंशन T। ये दोनों टेंशंस मिलके यहां पर क्या होते, 2T होता। अब ये सिंगल वायर, ये भी 2T मिलकर दिल टूटता, 4T होता, ठीक है। अब ये भी एक ही वायर है, ये भी 4T, समझ में आ रही बात। अब देखो T1 के तरफ, T1 लेफ्ट साइड है, T2 राइट साइड है, T1 के साइड में कितने टेंशन है, 4T, 2T एंड T, इसका मतलब ये हो गया 7T। T2 के तरफ सिर्फ एक ही ब्लॉक, एक ही टेंशन, मतलब T2 कितना हो गया, सिर्फ T1, समझ बात। तो अभी क्या करें यहां पर देखो, सो T2 के प्लेस में क्या है, सिर्फ एक ही T, T1 के प्लेस में क्या है, 7T, और ये 1 वैसे डाल दो, ये 2 वैसे डाल दो, टेंशन कैंसिल हो गया। सो A2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो रहा, टेंशन यानी एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू 7A1। नीट वालों, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को चंद सेकंड्स में सॉल्व करने चाहते हैं तो आप सही जगह पर है। अब यहां पर देख लो, एक बॉम्ब है जिसका मास 5m है, जो ब्लास्ट होकर 3 पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है, 3m, m और m। इसके लिए बुक के अंदर सॉल्यूशन देख लो, कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया। इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 1 मिनट तो लगता है, बहुत सारा टाइम जाया होता। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पहले से ही मालूम है, अगर टाइम सेव करना चाहते तो ये सही जगह है आप लोग। तो हमको करना कुछ भी नहीं है, चाहे यहां पर कुछ भी हो जाए वैल्यूज, तो सबसे पहले बड़े वाले मास को आप ले लो, ठीक है। तो बड़े वाला मास क्या करेंगे, सबसे पहले हम mv² बोलकर डाल देंगे, और जो भी बड़े वाले मास के ऊपर कोएफिशिएंट है, मतलब 3m है, वो 3 को ऊपर डाल देंगे, और ये 3 को जो है 1 से ऐड कर ऊपर डाल देंगे, बस आपका आंसर तैयार हो गया डायरेक्टली। अगर ये 6m है और 4m और m है, तो 6m अगर हो गया तो ये 4m हो जाता। उस वक्त क्या करना है, आपको 4 नीचे डालना है, ऊपर एक ज्यादा ऐड कर देना है, बस mv² डाल देना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, मगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा। ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास टाइम सेविंग टेक्निक्स है। यहां पर देख लो, कोई बॉडी को ड्रॉप कर दे रहे, नीचे आने के लिए कितना टाइम ले रहा, टाइम T। किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिए, ऊपर जाकर नीचे पहुंचने के लिए टाइम हो गया 8 सेकंड्स। किसी बॉडी को तेजी से नीचे की तरफ फेंक रहे, टाइम हो रहा 2 सेकंड्स। इसका मतलब जब ड्रॉप कर रहे, सेम हाइट से, सेम बिल्डिंग से, कितना टाइम लगेगा पूछ रहा। इसके लिए आसान टेक्निक क्या है मालूम, स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2, खत्म। तो स्क्वायर रूट ऑफ T1 इज 8 into 2 विच इज नथिंग बट √16, तो ये हो गया 4 सेकंड्स। इसका मतलब जस्ट ड्रॉप करेंगे ना, तो 4 सेकंड्स के अंदर जमीन पर आकर टकराएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर समझो, ये जो बैटरी है ना, इसके पास कितनी एनर्जी है, इस बैटरी के अंदर 100% एनर्जी है। जब
2 माइक्रोफैराड्स का कैपेसिटर बैटरी को ज्वाइन कर दिए तो ये पूरी 100% एनर्जी ये कैपेसिटर अब्सॉर्ब कर लेगा। मगर जब ये कनेक्शन जो बैटरी का है इसको यहां से निकालकर अगर यहां कनेक्ट कर दिए देन क्या होता है, ये 100 जो परसेंट है ना इसमें से ये दोनों शेयर करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटेंस के मुताबिक शेयर करेंगे। इसके अंदर 2 माइक्रोफैराड है तो 20% शेयर करेगा, इसके अंदर 8 माइक्रोफैराड्स है तो ये 80% शेयर करेगा। तो फिर क्यों करना है ये सब करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मगर क्यों अपने को टाइम वेस्ट करना है, समझे आप बच्चों। आज आओ हम बगैर किरचॉफ्स लॉ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएंगे। व्हाट इज द इफेक्टिव पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी बोल के पूछ रहा, ये दोनों ए एंड बी के बीच में इफेक्टिव पोटेंशियल बोल के पूछ रहा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ा सर में दर्द है, टाइम वेस्ट है। तो यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक थ्योरम है मिलमैन्स थ्योरम बोल के, वो मिलमैन्स थ्योरम का फॉर्मूला में डाल दिया। सिर्फ इतना करना है, E1 by R1 E2 by R2 1 by R1। यहां पर E1 मतलब 4/2 प्लस 2/2 ये E2 और ये E1। तो और क्या है 1 by R1 प्लस 1 by R2 मतलब ये R1 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 ईच होता, तो ऊपर क्या हो गया 2 2s 2 1s मतलब 2 + 1 3/1 हाफ ऑफ 1 हो गया। तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 3 वोल्ट्स। दैट्स इट। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिए आप प्रॉब्लम कैसा है। यहां पर v is equal to square root of 500 plus 24x है। इसको जनरली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करके करते प्रॉब्लम को, मगर नीट वालों के लिए हमने एक आसान तरीका इसके लिए निकाला है जिसमें आप लोगों को इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को भी बगैर इंटीग्रेशन के किस तरह सॉल्व कर सकते हैं मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखो v² इज इक्वल टू इस तरह लिख सकते हैं ना, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2ax लिख सकते हैं, जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरह। अब यहां पर 2a के प्लेस में क्या है देख लो आप लोग, 2a के प्लेस में है 24, तो ये क्या हो गया 24/2, इसका मतलब 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह हम आसानी से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व। प्यारे बच्चों स्क्रॉल मत करो, नीट वालों जेईई मेंस वालों आपके लिए बेहतरीन शॉर्टकट लाया हूं। यहां पर देखो ये 3/4 ऑफ ए सर्किल है, कंप्लीट सर्किल का बायोट-सेवर्ट लॉ के अंदर एप्लीकेशन क्या है μ0I/2r, किसका कंप्लीट सर्किल का। यहां पर क्या है 3/4 ऑफ ए सर्किल है, बस 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा आंसर तैयार हो गया। सो 3 μ0I/8r इसका आंसर है। नीट वालों स्क्रॉल मत करो, इतना आसान तरीका समझाऊंगा कि दिल खुश हो जाएगा। अभी देखो यहां पर इस तरह के मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें, इतना आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो, एक अगर कंप्लीट सर्किल है तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता है कंप्लीट सर्किल का, इट इज नथिंग बट μ0I/2r है ना कंप्लीट सर्किल का। मगर यहां पर क्या है आधे सर्किल है ना, ओनली 50% सर्किल है। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये 1 है ना B1, आधा सर्किल का कितना हो रहा μ0I/2r, इसका आधा है ना, इसका आधा मतलब हाफ, इसका आंसर क्या होता μ0I/4r हो रहा। सो अंदर वाले सर्किट का 4r1 ये हो गया B1 और μ0I/4r2, ठीक है। तो ये अंदर वाले सर्किट का और बाहर वाले सर्किट का, ये दोनों पार्ट्स का मैग्नेटिक इंडक्शन 0 है क्योंकि ये यानी कि सेंटर से एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं। तो ये वाला क्लॉकवाइज में है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज में है। अब सोचना ये है कि कौन सा बड़ा है, जिसका रेडियस छोटा उसका मैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये R1 छोटा है तो B1 ज्यादा है, सो B1 इज ग्रेटर देन B2। तो अभी हमको नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहता जी, इट इज μ0I/4, अगर कॉमन कर दिए तो 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि ये फॉर्मूला B1 का है और ये फॉर्मूला B2 का है, μ1/4 ये होगा इसका डिफरेंस। अब हमको रिजल्टेंट क्या हो रहा है देखो, ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये थंब जो है ना इनसाइड है और ये एंटी क्लॉकवाइज है थंब आउटसाइड है, एक इनटू एक आउटसाइड। मगर जो छोटा है ना उसका डोमिनेशन, इसका वैल्यू ज्यादा है तो वो डोमिनेट रहता है, इसका मतलब इनटू डोमिनेशन है तो हमको डालेंगे यहां पर, हम डालेंगे इनटू। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर μ0I/4 1/R1 माइनस 1/R2। कौन सा सेट हो रहा देख लो, सेकंड ऑप्शन सेट हो रहा, ठीक है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, इस प्रॉब्लम को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके करेंगे ना तो पूरा वक्त खा जाएगा, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री सत्यानाश हो जाएगा पूरा वक्त। इसको आसानी से निपटा दो। जब कभी भी कोई सैटेलाइट जो है ना 3R हाइट से लेकर 5R हाइट तक लेके जा रहे, सैटेलाइट को 3R से 5R तक जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे, व्हाट इज द वर्क डन बोल के पूछ रहा, ग्रेविटेशन के अंदर व्हाट इज द वर्क डन बोल के पूछ रहा। बस एक सिंपल हैक मैं बताता हूं। तो वर्क डन आप लोगों को मालूम है G_M_r, ये तो हो गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है मालूम आप लोगों को, ये जो 3R और 5R दिया ना, इसको क्या करो 5 - 3 कर दो, पहले डिफरेंस कर दो दोनों का, उसके बाद कर दो प्रोडक्ट।
ओके, सो डिफरेंस और प्रोडक्ट करेंगे ना तो आपका आंसर क्या होगा, 2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई 15R। आपका सॉल्यूशन तैयार। ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है बेसिकली। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ऊपर 5 नीचे 10 और उसका रिवर्स, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो हो ही नहीं सकता। अब इसको करना है तो ये सारे मेथड्स यूज करना पड़ेगा और डेल्टा स्टार ट्रिक यूज करना पड़ेगा। बहुत लंबा, बहुत समय दर्द। मैं आपके लिए एक फॉर्मुला डिकोड किया हूं, 1 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स के लिए फॉर्मुला डिकोड करा। रेसिस्टेंस अक्रॉस, ये भी करना क्या है मालूम आप लोगों को, 7 इंटू रेसिस्टेंस स्मॉल डिवाइडेड बाई 5, बस इतना सा फॉर्मुला डिकोड कर लो, आंसर आसानी से आ जाएगा। 7 इंटू रेसिस्टेंस स्मॉलर वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाई 5, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहे तो और एक भी एग्जांपल मैं देता हूं, अगर ये 10 और ये 20 और ये 10, ये 20 और ये 10, इस तरह के प्रॉब्लम के लिए आपको करना क्या है, जस्ट रेसिस्टेंस नेट इज इक्वल टू 7 इंटू स्मॉलर रेसिस्टेंस में 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5 करना है। सो इसका आंसर हो जाएगा 14 ओम्स। समझा आप प्यारे बच्चों? इस तरह के मल्टीपल पुलीज एंड ब्लॉक्स एंड एंगल्स के प्रॉब्लम्स को किस तरह हम सिंपल और इजी मेथड से कर सकते हैं। कोई भी इंटरमीडिएट नॉलेज अगर नहीं भी है, थोड़ा मैथ्स मालूम है, थोड़ा बेसिक्स ऑफ 8th एंड 10th अगर मालूम है, तब भी हम इस प्रॉब्लम को कर सकते। देखो किस तरह कर सकते हैं। अब यहां पर देख लिया आप लोग, ये है टेंशन और ये भी टेंशन, इधर भी टेंशन, इधर भी टेंशन। टेंशन को हमने मेंशन किया। अब क्या करेंगे, अभी आप लोगों को मालूम है नीचे की तरफ क्या होने वाला है, mg। तो आप लोग लिख लीजिए सबसे पहला इक्वेशन, टेंशन इज इक्वल टू mg। अब यहां पर देख लो, ये टेंशन है, ये टेंशन है। इस टेंशन का कंपोनेंट इधर क्या हो गया, t cos थीटा। इस टेंशन का कंपोनेंट इधर क्या हो गया, t cos थीटा। इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर कंपोनेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन ऊपर की तरफ क्या हो गया, 2t cos थीटा। और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, यहां पर कितना मास इधर एडेड है, √2mg विच इज इक्वल टू √2mg। ठीक है, तो √2mg हो गया। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, ऑलरेडी टेंशन इज इक्वल टू mg डाल दिया, इधर डाल दो टेंशन इज इक्वल टू mg। अभी हमको एंगल निकालना है और √2mg, mg गया काम से, cos थीटा आया काम से, और √2/2, यहां पर √2 को कैंसिल करो, इसको डिवाइड करो √2 से, क्योंकि 2 का मतलब √2 इंटू √2 सही रूट पे आ गया। अभी 1/√2 कौन सा एंगल है, cos 45 का एंगल है। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अभी और जबरदस्त और मजेदार प्रॉब्लम कराने वाला हूं, यहां पर देख लो। और ये जो है ना इक्वेशंस है, द फोर्स ऑन द पुल्ली पूछ रहा, इस पुल्ली के अंदर कितना फोर्स ऐड हो रहा, तो यहां पर 4 ऑप्शन दे दिया। तो कितना फोर्स पुल्ली पे ऐड हो रहा, देखिए घबराना नहीं, डरना नहीं, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। हिम्मत से अटैक करो प्रॉब्लम्स को, डरना नहीं। हिम्मत करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आगे बढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा। डर जाएंगे ना, जो याद है वो भी चले जाएगा। ठीक है, तो अभी देख लो यहां पर क्या है, ये पुल्ली का भी मास दिया, पुल्ली का मास m है, और ब्लॉक का भी मास दिया। थोड़ा हिकमत इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, हिकमत, शानपत बोलते हैं ना, हिकमत इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अभी देख लो क्या होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हो गया टेंशन T और यहाँ पर भी टेंशन T। इसका मतलब इसके नीचे की तरफ अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले लिए तो यहाँ पर टेंशन T और यहाँ पर नीचे की तरफ भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T, इधर भी टेंशन T। या तो अगर इतना कंफ्यूज हो रहा तो एक ही टेंशन ले लो, ये भी टेंशन T और ये भी टेंशन T। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट क्या हो गया, √2t होता। ओके, √2t होता। और ये टेंशन क्या हो गया, नीचे क्या हो रहा, mg हो रहा, ये कैपिटल mg है, कैपिटल mg। ठीक है, तो ठीक है ना। अभी तो इसके ऊपर क्यों कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इस तरफ मतलब इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स ये है। पैरेललोग्राम यूज करें ना तो रिजल्टेंट फोर्स Fr हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स Fr इज नथिंग बट √2 इंटू टी। √2t का मतलब कैपिटल m इंटू जी। ये कब है, ये अगर पुल्ली का मास अगर नहीं लिए तो ये है। अगर पुल्ली का मास अगर दे रहा, मास m दिया, इसलिए क्या हो रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट बोल के दे दिया। अब अगर ये डी ऑप्शन, ये इतना बड़ा आंसर नहीं आ रहा ना मेरे को, फिर क्या करूं मैं? उतना बड़ा आंसर लाने के लिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन देख लो आप चाहे तो, इधर इतना कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है। मगर मैं आपको छोटा सा हिकमत की बात बताता हूं। यहाँ पर अगर m को 0 ले लिए ना, m इज इक्वल टू अगर 0 ले लिए, मतलब पुल्ली इज मासलेस अगर बोले तो क्या होता देख लो। अब यहां पर ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, अब देख लो यहां पर क्या होने वाला है। अब यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर पुल्ली को मासलेस समझे ना तो डी के अंदर जो है ना, ये नहीं है, उठा दिए उसको, उड़ा दिए, तो मतलब क्या हो रहा, अभी क्या बच रहा है इधर,
√2m² प्लस m², ठीक है, जी है, यहां पर भी जी है, m² एंड m², जी बाहर है, रूट के बाहर है, तो ये रूट के बाहर हो गया, तो क्या हो रहा, 2m जी हो गया, ठीक है। कौन सा वाला जी, बड़ा वाला जी, कैपिटल एम जी हो रहा, कैपिटल एम जी हो रहा। तो ये इतना आसान मेथड में समझाया। स्मॉल m इक्वल टू 0 अगर डाल दिए ना तो आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पुल्ली का मास दिया तो स्मॉल m भी आना सीन के अंदर। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ स्मॉल m है, कैपिटल M भी है ना आंसर में। तो ये वाले दो ऑप्शंस में कैपिटल M भी है, स्मॉल m भी है, तो दो तो एलिमिनेट कर दिए। इस तरह का टेक्निकल अप्रोच, एकदम शानदार दिमाग इस्तेमाल करके अप्रोच करना, ये दोनों तो उड़ा दिए। अब होगा आंसर इन दोनों में से, ठीक है। तो यहां पर भी m इक्वल टू 0 बोल के डाले तो मैच नहीं होता क्योंकि कैपिटल M भी आ रहा, स्मॉल m भी आ रहा। मगर हमारा आंसर क्या है, मास को अगर पुल्ली को अगर मासलेस अगर होना है तो फिर √2mg आना। तो कौन से ऑप्शन में m इक्वल टू 0 डाले तो √2mg होता, ये आंसर में डाले तो होता, ये आंसर में डाले तो नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रही बात। इस तरह के टेक्निक्स को इस्तेमाल करना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अगर आप इस तरह के टेक्निक सीखना चाह रहे तो लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाए। कल से 9 बजे शार्प लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। सारे टेक्निक सिखाऊंगा और आप लोगों को इजीली 120 मार्क्स लाने का आसान तरीका भी बताऊंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों। इस प्रॉब्लम को स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में समझाया मैं। आप चाहे तो लेंथी सोल्यूशन देख लो बुक्स के अंदर, इसको टाइम ज्यादा भी लगता है, इवन सोल्यूशन भी आप समझने के लिए बहुत फड़फड़ियां मारते। अभी देख लो आप लोग, मैं इसको स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में कैसे सॉल्व करता हूं। यहां पर सबसे पहले म्यू इज इक्वल टू sin 45 बाई sin r, ठीक है ना, sin r, ओके। तो यहां पर क्या है, r प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है ना, तो ये दोनों मिला के 90। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस r, या यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, यू कैन राइट r इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या, sin 45 को वैसे रख दो और sin r अगर कर दिए तो क्या होता है, sin r, यहां पर डाल रहा हूं मैं, sin r इज नथिंग बट sin 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है, cos थीटा हो रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग sin r वी कैन राइट cos थीटा, ठीक है। तो म्यू का पहला वाला वैल्यू आ रहा है। अब जो है ना लाइट रे ऐसा जाके फिर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बता रहा है एग्जाम डायग्राम के अंदर, बुक के अंदर। मगर मैं अगर इसको क्रिटिकल एंगल अगर समझूंगा तो थीटा क्रिटिकल एंगल हो गया, और ये जो है ना इस तरफ ग्रेजिंग होता, जस्ट सरफेस से गुजरता। क्रिटिकल एंगल अगर थीटा को समझेंगे तो अब देखो क्या होता है यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ वही स्नेल्स लॉ लेकर यहां से रिवर्स ले रहा हूं मैं, यहां से रिवर्स। मतलब म्यू इज इक्वल टू ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ले लिया, अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ले लिया तो क्या होता, sin 90 डिवाइडेड बाई sin थीटा, ठीक है। sin 90 का मतलब 1, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, दो भी म्यू है। sin 90 का मतलब 1, तो मैं क्या करूं यहां पर 1 बाई sin थीटा इज इक्वल टू sin 45, sin 45 डिवाइडेड बाई cos थीटा बोलकर डाल दिया। अब देखो यहां पर sin थीटा ऊपर ले लिया और cos थीटा नीचे ले लिया, और यहां पर क्या क्या डाल दिया मैं, यहां पर 1 बाई sin 45 डाल दिया, 1 बाई sin 45। This implies that sin theta by cos theta क्या हो गया, tan theta। sin 45 मतलब 1 by √2, √2 ऊपर आ जाता ना, √2 डाल दो, ठीक है। तो मैं क्या करूं अभी, इसको एक ट्रायंगल के ऐसा ले ले रहा हूं मैं। ये जो है ना एक ट्रायंगल है जिसका एंगल थीटा है, sin थीटा मेरे को क्या आ रहा, √2 आ रहा, √2 मतलब √2 by 1, तो ये √2 हो गया, ये 1 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम करें तो क्या होता है, ये √3 होता, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम करें तो क्या होता, 1 स्क्वायर पर √2 होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी √3 होता। अब हमारे को पूछ रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा तो क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। ये फॉर्मूला मतलब म्यू इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा, ठीक है। sin 90 का मतलब 1 बाई sin थीटा ले सकते हैं। अब ये एंगल के अंदर 1 बाई sin थीटा बोले तो क्या आ रहा, देख लो आप लोग। sin थीटा का मतलब क्या आ रहा, sin थीटा मतलब √2 बाई 3, √2 बाई √3 आ रहा ना, उसका रेसिप्रोकल हो जाता √3 बाई √2, ठीक है। √3 बाई √2, यही तो आंसर है ना, सी वाला ऑप्शन आंसर है। समझ आ रही बात। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नीट वालों इसको आसानी के साथ करना सीखेंगे हम लोग। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो। यहां पर देख लो, 3rd सेकंड के अंदर कोई बॉडी 4 मीटर जा रही,
4th सेकंड के अंदर 5 मीटर्स जा रही, 5th सेकंड के अंदर 6 मीटर्स बॉडी ट्रैवल कर रहा, 6th सेकंड के अंदर 7 मीटर्स ट्रैवल कर रहा। इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है? यहां पर देख लो, फर्स्ट पॉइंट के अंदर अगर देख लिए तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रहा है, 4 मीटर्स पर सेकंड है, और यहां पर क्या है, 5 मीटर्स पर सेकंड हो गया। तो डिस्टेंस यहां पर देख लो, एक एक सेकंड के अंदर एक एक मीटर जो है बढ़ते चले आ रहा। मतलब फर्स्ट अगर ये u आकर 4 मीटर पर सेकंड समझे और v आकर 5 मीटर पर सेकंड समझे, तो यहां पर क्या हो रहा, एक्सेलरेशन क्या होगा, और टाइम को देखो, यहां पर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड का डिफरेंस है 4 में से 5। बस इतना करना है, v माइनस यू बाई टी, जनरल फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं हम इसको। अभी देख लो, यहां पर फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट के पास इतना है, इस पॉइंट के पास इतना है, तो v आके 5 माइनस 4 बाय टाइम डिफरेंस कितना है, 1। तो आपका आंसर हो गया 1 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीट वालों, हम एरोप्लेन के मूवमेंट जो इस प्रॉब्लम में दिए गए उसको मेंसुरेशन के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखो, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरोप्लेन। यहां पर 300, 400 और 1200 बोल के 3 वैल्यूज दे दिया। अगर हम स्ट्रक्चर को क्यूबॉइड के ऐसा इमेजिन करेंगे, समझेंगे कि एरोप्लेन सबसे पहले ए डायरेक्शन में जा रहा और कितना स्पीड से जा रहा, कितनी दूर चले जा रहा, 400 मीटर्स। ओके, उसके बाद एरोप्लेन जो है ना इस डायरेक्शन में आ रहा ब्रेथ की तरफ, इसको समझो लेंथ, इसको समझो ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हो गया 300 मीटर्स, और ऊपर की तरफ मतलब हाइट की तरफ एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा कितना, 1200 मीटर्स अगर ट्रैवल कर रहा, तो फिर क्या हो गया, ये हो गया हाइट इज इक्वल टू 1200 मीटर्स। ओके, तो हमको मालूम करना क्या है, अभी डायगोनल मालूम करना है। ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एरोप्लेन। यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ एन एरोप्लेन बोल के बोलते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, मेंसुरेशन के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर, एल स्क्वायर का मतलब 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, तो हो गया डायगोनल कितना, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1300 मीटर्स। नीट और जेई वालों, जब कभी एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स आते हैं तो ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम के अंदर अगर डिस्कशन ऐसा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द, डिस्टेंस का डिस्कशन अगर है तो हम बोलेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड, इसको दास बोलेंगे। और अगर इसके अंदर हाफ टाइम और नेक्स्ट हाफ टाइम टाइम का डिस्कशन अगर आ रहा तो हम उसको बोलेंगे टाइम एवरेज स्पीड। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स को। अगर डिस्टेंस एवरेज स्पीड आ रहा तो हम उसको हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, और अगर टाइम एवरेज स्पीड आ रहा तो हम उसको अर्थमेटिक मीन यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये हो गया, और जो भी वैल्यूज हमको दिया 60 और 40 एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 60 प्लस 40 अगर करेंगे तो हमको आएगा किलोमीटर पर आवर। और जब कभी भी डिस्टेंस एवरेज स्पीड के बजाय टाइम एवरेज स्पीड दे दिया, यानी कि हाफ टाइम और हाफ टाइम, इसको यहां पर एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए अर्थमेटिक मीन यूज करेंगे, यानी जनरल मीन। 60 प्लस 40 बाई 2, इसका आंसर होगा 50 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम टाइम एवरेज स्पीड बोलेंगे। ठीक है, नीट और जेई वालों, अब यहां पर देख लो, what is the ratio of the distance covered by a body in the 5th second and in 5 seconds? What does it mean? यहां पर क्या कहना चाह रहा, 5th second and 5 seconds, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन 5 सेकंड्स, मतलब ये हो गया सूटेबल फॉर्मूला। मगर स्टार्टिंगली इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हम यहां क्या ले रहे हैं, टाइम t सेकंड्स बोल के बोले। इसके बजाय अगर हम टाइम t इज इक्वल टू n सेकंड्स अगर ले तो sn इज इक्वल un प्लस हाफ an स्क्वायर बोल के लेंगे। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द nth सेकंड का फॉर्मूला ये हो गया, और इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, तो इसका मतलब sn इज इक्वल, ये फॉर्मूला बच गया हमारे पास। और यहां पर सबसे पहले 5th सेकंड, उसके बाद 5 सेकंड्स, मतलब क्या है, यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकंड्स बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, देखो ये nth सेकंड है और ये n सेकंड्स है, इतना सा डिफरेंस है बस। तो यहां पर क्या बच गया, हाफ ये 2n माइनस 1, हाफ ये n स्क्वायर, हाफ ये कैंसिल हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे, तो बचेगा क्या, सबसे पहले 5th सेकंड मतलब 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ये हो गया आपका फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला तैयार हो गया। सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा 5th सेकंड एंड 5 सेकंड्स, इसका मतलब 2 into 5 minus 1 divided by 5 square, which is nothing but 9 by 25। आपका आंसर तैयार है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका आंसर। थैंक यू वेरी मच। नीट और जेई वालों, एक बस जो है ना 10 मीटर्स पर सेकंड से जा रही, वेलोसिटी ऑफ ए बस इज 10 मीटर्स पर सेकंड। एक स्कूटरिस्ट है जो भी 1 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी। ओके, तो एक स्कूटरिस्ट जो है 0 वेलोसिटी से स्टार्ट होकर उसको ओवरटेक करने के लिए तकरीबन 100 सेकंड्स लगे इसको। Okay, then what should be the speed of the scooterist बोल के पूछा। यहां पर हम लोगों को मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पर दोनों का वेलोसिटी है, एक ही डायरेक्शन के है,
एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी टू टाइम, यानी कि डिफरेंस इन द वेलोसिटीज इनटू टाइम हियर। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक 1000। ओके, और ये टाइम को नीचे ले लेंगे, टाइम कितना है 100 सेकंड्स। ओके, 100 सेकंड्स दे दिया ना टाइम, यानी कि 100। अभी बचा क्या, वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बस, ऑलरेडी हमको मालूम है 10। ये टी तो नीचे आ गया। ओके, देन आफ्टर दैट हाउ मच इट बिकम, तो वेलोसिटी ऑफ ए स्कूटरिस्ट इज ऑलरेडी 10 है, ये 10 को पीछे ले लो, 10 + 10 व्हिच इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड हो गया आपका velocity of a scooterist. Okay, to find out the velocity in the case of displacement time graph, इसके अंदर displacement time graph के अंदर velocity अगर मालूम करना है तो velocity is going to be the slope here and slope is going to be tan theta. Tan theta, which is nothing but opposite side is displacement and adjacent side is time here. Okay, तो slope जाके आपको displacement time velocity मिलेगा अगर slope मालूम करेंगे। तो यहां पर अगर velocity of the first arrow and the second arrow, that means these two are the different velocities and you want to find out the velocity of v1 by v2, then हमको करना क्या है, tan theta 1 by tan theta 2 मालूम करना है। So it's going to be tan 30 divided by tan 60 which is 1 by √3 divided by √3 which is nothing but 1 by 3. So therefore v1 by v2 is nothing but क्या होगा यहाँ पर, it's going to be 1:3. That's it. The fourth option is going to be your correct answer. Thank you very much. My dear NEET and JEE वालों, जब कभी भी एक बुलेट एक प्लैंक से गुजरता है तो उसके अंदर जो वेलोसिटी की कमी होती है, इट इज फॉर एग्जांपल 1/nth ऑफ द वेलोसिटी इट लूजेस। ओके, देन हाउ मेनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड so that the bullet after crossing so many planks its velocity becomes 0. So how many planks are required to make its velocity 0? For that, a simple trick is you have to use this formula. And similarly here, for example, 1/nth. In this question, in the place of 1/nth, it is given 1/20th. That means n equal to 20. And your formula is ready. So 20 square by 2 into 20 minus 1, which is nothing but 400 divided by 40 minus 1, this is 39. Okay, it's going to be 10.3. That means 10.3 means it is 11th plank also required to stop the bullet. That's it. So how many planks are required means 11 planks are required to completely stop the bullet and make its velocity to be 0. इस प्रॉब्लम को देखते ही हम गलत समझकर मिस्टेक करके आते हैं। मैंने भी ऐसे किया, मगर ये बहुत परेशान, यानी कि डिफरेंट स्टाइल में पूछा गया इसको। देखो आप लोग, तो यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट इधर लिया, टाइम इधर लिया, और कौन सा एंगल दिया, देखो ये एंगल दिया। हालांकि हमको कौन सा एंगल लेना है, द एंगल विच इज एडजेसेंट टू टाइम, इसको लेना है हमको। दैट मींस इट इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज। तो क्या हो गया यहां पर, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और टाइम ये हो गया। और हमारा जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ ए ग्राफ विच इज नथिंग बट tan थीटा। तो कौन सा स्लोप लेना है हमको, ये वाला स्लोप लेना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप इज नथिंग बट tan 60 लेना है हमको, tan 39। ओके, सो tan 60 इज नथिंग बट √3 इज गोइंग टू बी आंसर। दैट्स इट। ओके, थैंक यू। मेरे नीट के पागल दीवानों, स्क्रॉल मत करो, ये शॉर्टकट्स तुम्हारी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर देख लो, ये जो है गेट्स का प्रॉब्लम है, इसके अंदर आउटपुट 1 आने के लिए इनपुट क्या होना चाहिए। जनरली हम फॉरवर्ड मेथड में करते हैं, मगर मैं आपको रिवर्स मेथड सिखाता हूं। फॉरवर्ड मेथड मतलब क्या, चारों के चार ऑप्शंस को आप अप्लाई करके आउटपुट 1 है या नहीं ये टेस्ट करेंगे। इसमें बहुत सारा वक्त खप जाएगा, मगर मैं रिवर्स मेथड में समझाऊंगा। मैं आउटपुट 1 लेकर इनपुट क्या क्या पॉसिबिलिटी से समझाऊंगा। आउटपुट 1 आने के लिए एंड गेट के अंदर दोनों इनपुट्स 1 होना चाहिए, मतलब सी तो कंपलसरी 1 होना चाहिए, और सी कंपलसरी 1 सेकंड ऑप्शन के अंदर है। तो आधा प्रॉब्लम सॉल्व करके पूरा आंसर आ गया ना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर एक कैपेसिटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये खाली कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, और इस कैपेसिटर के अंदर आधा जो है खाली है, आधा जो है एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिए हैं यहां पर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आके 4 है। ओके, तो खाली कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C है तो आधा अगर भर गया तो फिर उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता, C1 = 2 K1 K2 by K1 + K2। यहां पर जो है K1 आके 1 है तो फिर K2 आके 4 है, बस इतना ही। तो यहां पर C1 यानी कि ये C1 अगर है तो इसको C2 ले लेंगे। 2 × K1 K2 मींस 1 × 4। ओके, तो 1 × 4 by 1 + 4। ओके, 1 × 4 by 1 + 4 × C। तो ये क्या हो गया, 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 5 × C। तो यहां पर क्या पूछा, रेशियो पूछा, रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस मींस C2 by C1 इज नथिंग बट 8/5 × C होल डिवाइडेड बाय ये वाला C। तो C gets cancelled, 8/5 is going to be your answer. Okay,
तो ये आसान, दुनिया का सबसे आसान मेथड समझ रहा हूँ मैं इसको। ठीक, प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे सबसे आसान तरीके में। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लो, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से डायोड्स रिवर्स बायस होंगे, वो पहचान लिया पहले से। तो सबसे पहले की बात क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्शन है, नेगेटिव से कनेक्शन है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्शन है, ये वाला रिवर्स बायस, ये वाला फॉरवर्ड बायस, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्शन, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि ये वाला डायोड के पार्ट को हम निकाल देंगे, और ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस होने की वजह से वो डायोड हो या ना होने के बराबर एक वायर समझेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो इसके सर्किट को, इस वाले सर्किट को हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस वाले सर्किट से। सेम बैटरी, ये वाला नहीं है, ये वाला डायोड निकाल दिए, इसको 10 ohms ले लिए, बाजू में 10 ohms, ऊपर 10 ohms, खत्म। अब ये वाला 10 and 10 20 हो गया, ये वाला 10 हो गया। ओके, और ये वाला 10 volts। अब ये 10 10 20 और इसको पैरेलली कनेक्टेड है 10 से, तो 20 into 10 by 20 plus 10 हो गया आंसर, बिकॉज R1 R2 by R1 plus R2, ये हो गया 200 divided by 30। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो अभी हमको रेजिस्टेंस तो आ गया, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस तो आ गया। अब हमको करंट होना है, करंट I इज इक्वल टू V बाई R। ओके, तो V क्या है यहाँ पर, V हो गया 10, तो V 10 हो गया, और ये वाला 20/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, सो I इज इक्वल टू 3/2 हो गया, विच इज नथिंग बट 0.2 एम्पियर्स। ये हो गया सबसे आसान आंसर आपका। तो इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को भी इस तरह हम सिंप्लीफाई करके आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे सबसे आसान तरीके में। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लो, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कौन से डायोड्स फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से डायोड्स रिवर्स बायस होंगे, वो पहचान लिया पहले से। तो सबसे पहले की बात क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव से कनेक्शन है, नेगेटिव से कनेक्शन है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्शन है, ये वाला रिवर्स बायस, ये वाला फॉरवर्ड बायस, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्शन, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया इसके अंदर। इसका मतलब ये है कि ये वाला डायोड के पार्ट को हम निकाल देंगे, और ये दोनों डायोड्स फॉरवर्ड बायस होने की वजह से वो डायोड हो या ना होने के बराबर एक वायर समझेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो इसके सर्किट को, इस वाले सर्किट को हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इस वाले सर्किट से। सेम बैटरी, ये वाला नहीं है, ये वाला डायोड निकाल दिए, इसको 10 ohms ले लिए, बाजू में 10 ohms, ऊपर 10 ohms, खत्म। अब ये वाला 10 and 10 20 हो गया, ये वाला 10 हो गया। ओके, और ये वाला 10 volts। अब ये 10 10 20 और इसको पैरेलली कनेक्टेड है 10 से, तो 20 into 10 by 20 plus 10 हो गया आंसर, बिकॉज R1 R2 by R1 plus R2, ये हो गया 200 divided by 30। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो अभी हमको रेजिस्टेंस तो आ गया, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस तो आ गया। अब हमको करंट होना है, करंट I इज इक्वल टू V बाई R। ओके, तो V क्या है यहाँ पर, V हो गया 10, तो V 10 हो गया, और ये वाला 20/3 ऊपर आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, सो I इज इक्वल टू 3/2 हो गया, विच इज नथिंग बट 0.2 एम्पियर्स। ये हो गया सबसे आसान आंसर आपका। तो इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को भी इस तरह हम सिंप्लीफाई करके आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को किस तरह हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, बैटरी कनेक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल, जिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड को कनेक्टेड है वो सब फॉरवर्ड बायस है, और जिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड को कनेक्टेड है वो सब रिवर्स बायस है। तो ये वाला पार्ट हम निकाल देंगे, क्योंकि ये डायोड काम नहीं करेगा रिवर्स बायस के अंदर। तो इसको अगर हम इमेजिन करेंगे कि सीन के अंदर है ही नहीं, तो फिर क्या होगा। अब ये डायोड हो या ना हो, इसको निकाल भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो एक लाइन की तरह, बस एक वायर की तरह है। ओके, तो बस इतना सा सर्किट बच गया है यहाँ पर 16। ओके, और ये वाला 16 और 16 पैरेलली कनेक्टेड है, तो फिर क्या होगा, पैरेलल है तो फिर 8 होगा आंसर। तो ये सारे सर्किट का 8 आंसर होगा। ये 8 जो है 2 से सीरीज में है, 8 + 2 इज गोइंग टू बी 10, तो I इज गोइंग टू बी V बाई R। V हो गया 10, पूरा रेसिस्टेंस हमको आ गया 10, तो आपका आंसर हो गया 1 एम्पियर। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रॉब्लम जो कि सेमीकंडक्टर्स का प्रॉब्लम है, सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है हम देखेंगे यहाँ पर फास्टेस्ट पॉसिबल वे में। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी है, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया, तो ये सर्किट में से निकाल देंगे। ओके, तो ये वाले पार्ट को हम सर्किट में से निकाल देंगे, ये है, ये नहीं है। ओके, वी विल रिमूव दिस वन। बस इतना सा सर्किट है।
इस सर्किट को हम सिंप्लीफाइड वे में डाल देंगे। अब देखो डायोड्स अगर फॉरवर्ड बायस है तो समझो कि एक वायर है, बस डायोड है नहीं उधर, तो ये डायोड्स को भी निकाल देंगे हम। ओके, फॉरवर्ड बायस का डायोड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस सर्किट को हम थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे इस तरह। तो ये हो गया 10 10 20 और ये 10 हो गया। ये 20 और ये 10 जो है पैरेलल कनेक्शन में है। ओके, जब ये पैरेलल कनेक्शन में है तो R1 R2 by R1 plus R2 मतलब 20 into 10 by 20 plus 10, ये हो गया 200 by 30 which is nothing but 20 by 3। ये हो गया रेसिस्टेंस नेट रेसिस्टेंस तो आ गया। हमको करंट पूछ रहा बैटरी के अंदर, तो करंट इज नथिंग बट I is equal to V by R। V का मतलब 10 और R कितना हो गया 20 by 3, 3 ऊपर आ जाएगा, ये दो खत्म, तो ये हो गया 3 by 2 which is nothing but 1.5 एम्पियर्स आपका आंसर है। ओके, तो इसका आंसर क्या है 1.5 एम्पियर्स। दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट, दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, an intelligent question from the chapter called as semiconductors here. If you observe, there are two diodes here and is asking us to find out what is the current I1 and I2. First thing is we have to decide whether the diodes are forward bias and or reverse bias. That is the thing here. It is understood that the positive is connected to positive of a battery and positive negative of a diode is connected to negative of a battery. So both the diodes are forward biased. When both the diodes are forward biased, that means their presence doesn't have any meaning. That means they are not present, because diodes when they are forward biased, they behave just like a wire. That's it. With this, it is understood that when current starts up to here, it comes here. When current comes here, it never tries to pass through 14 kilo ohms, which is very high resistance. The current will come and bypass through this path, because this is a short circuit. It bypass through this path. Okay, so current will never pass through 14 kilo ohms, because current is very intelligent. It never tries to pass through high resistance path. It tries to flow through the low resistance path, like short circuited path here. Okay, that means I1 is going to be 0 in this case, and I2 is nothing but only this resistance is considered. These two resistance are not considered because they are very high resistance, and current never flows through high resistance path. It will bypass and comes here. Okay, that means what is I2 here? I2 is nothing but V is 10 volts. Okay, so 10 divided by 2 kilo ohms, which is nothing but 5 milliamperes is going to be your answer. That's it. Dear students, ये semiconductors का question है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट पोटेंशियल अक्रॉस ए बी। तो यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस ए बी मालूम करना है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है। इस मतलब ये जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में है इसका मतलब वो डायोड वहां पर नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ वायर, यू कैन इमेजिन। ओके, तो अब ये 10 और ये 10, इसका मतलब दोनों पैरेलल है और दोनों का रिजल्टेंट क्या है 5 है। 10 into 10 by 10 plus 10 इट्स गोइंग टू बी 5। इसका मतलब हम इसको भी निकाल सकते हैं, वी कैन रिमूव दिस वन आल्सो। इसको हम निकाल देंगे और ये हो गया 5। थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप में डिसेक्शन करके बताता हूं मैं। ये हो गया 5 ohms। अभी व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस ये भी पूछ रहा ना, तो ये 10 है और ये 5 है, ये इसका डबल है। इसका मतलब पोटेंशियल भी यहाँ पर अगर 20 वोल्ट्स होगा तो फिर यहाँ पर 10 वोल्ट्स होगा। ये आंसर इज गोइंग टू बी 10 वोल्ट्स। दैट्स इट। ठीक है, इस तरह एक एक स्टेप डिसेक्शन करेंगे तो समझ में आएगा आंसर। देखिए